Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to study about nomenclature of coordination compounds, and at the same time we will also study that how to write formula of coordination compound if IUPAC name is given to us. So students, this topic is very important and means every time when you will see the question paper you will get questions from these two topics, how to make formulas and how to write IUPAC naming. So students, pay attention and watch the video very carefully. So students, as you can see that I have pasted this picture, and because before writing IUPAC naming, before learning how to write IUPAC naming, you must know that how you will pronounce the different type of ligands which are attached with the central atom. And the main thing is that if suppose if uh, chloride is a ligand, then in that case what you will do, suppose if Cl negative is a ligand, okay, and generally we call this as chloride, CHLORID. So but this is okay, this is chloride, but in IUPAC naming, in while writing IUPAC naming, we will call it chloride, okay. It means you have to replace this E, you will replace this E and it becomes CHLORIDO, chlorido, understood. So in place of E you have to put O. So now when the Cl atom is bonded to central atom in coordination compounds, we will call it chlorido in spite of chloride, okay. So not in this case only, as you can see that this is CH3 COO, okay. So we all know that CH3 COO minus, this is acetate ion, this is acetate, ACETATE. But while writing IUPAC naming, as I told you, we have to replace this E by O, okay. Then it becomes acetato. So this thing you have to do in each and every ligand which are negatively charged, okay. In the same way, if it is C2O42 minus, this is oxalate ion, okay, this is oxalate ion. But while IUPAC naming, you will remove this E and it will be replaced by O. You will call it oxalato. You will call it oxalato. Understood, students? So this is the basic thing, that the E of the ligand will be replaced by O. If it is chloride, you will call it chlorido. If it is acetate, you will call it acetato. If it is oxalate, you will call it oxalate, okay. So this is a very important picture, and you should means you should note down, or you can say copy this, so the same photo in your fair notebooks. And OH minus ion is called hydroxo, then this is peroxo, this is nitrato. So this is the thing, students, okay. So now I'm taking few examples. One more thing, students, that how you will write IUPAC naming, the rules are given in NCERT book. First of all, go through all the important points which are given in NCERT. Then you can easily write IUPAC name of the complex. So I am starting with few examples. I am taking very simple example first of all. Okay, suppose this is K3 and in bracket it is written FeCN6, FeCN6, okay. So this is the complex. So while starting IUPAC naming, the first rule is that cations are written first, ठीक है. इसमें जो पोटेशियम है ये अपना मेटल है और ये कैटायन के फॉर्म में ऐसे जाएगा. अगर ये आयनाइज होता है तो ये कैटायन के फॉर्म में जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको लिखना पड़ेगा इसको पहले, उसके बाद में लिगेंड्स आएंगे और बाद में सेंट्रल एटम आएगा. ये रूल है, ध्यान रखना है. अगर कोई मेटल है, अगर वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है तो उसको पहले लिखा जाएगा. एंड वी हैव टू स्टार्ट IUPAC नेमिंग विद स्मॉल लेटर्स, ओके. सो पोटेशियम, and then ligand. How many ligands are there? 6.
and you have to give a space, means you have to leave some space also. Then it is hexa cyano, and this is Fe. And student, I want to tell you one more thing, that when this potassium will ionize, it will form 3K plus, and the opposite charge you have to put on the complex like this, it becomes 3 minus. Okay, so we can say that this is a anionic complex, and when the complex is anionic complex, then the name of central atom also changes. You will not call it iron, now it becomes ferrate. Okay, you will call it ferrate, it will not you will not call it iron. So you have to write ferrate, FERRATE, and this you have to do only in case of the complex which is anionic. And then find the oxidation number. When you will calculate the oxidation number of central atom, you will get it 3, you will get it as 3. Write 3 in Roman numbers and then close the bracket. Okay, like this, and close the bracket. Okay, so this is the complete name of this complex. In the same way, and how to find the oxidation number, that I have told you in previous video, very short video of 1 minute I think. Go through that video and then you came to know that how to write the oxidation number. Okay, now we are taking one more example, this is another complex K3. Now cobalt is central atom, Cn is 5, I am taking 5 Cn cyanide ion, and then this is NO, and NO is known as nitrosyl. ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है. आप देखो यहाँ पे NO लिखा हुआ है, और NO को हम क्या कहते हैं, ऊपर टेबल में आ जाओ, मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है इसमें. ठीक है, तो NO है, इसको हम कहेंगे नाइट्रोसिल, ये कहीं पे लिखा होगा. अब इसको पढ़ेंगे 1 मिनट. इसमें स्टूडेंट दिया हुआ नहीं है, लगता मुझे क्रॉप आउट हो गया है वो, लेकिन आप ध्यान रखें. और कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर अमोनिया है तो अमोनिया को यहाँ पर हम अमाइन कहेंगे, और वाटर को हम एक्वा कहेंगे, तो लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, और अमोनिया को अमाइन कहेंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का. ठीक है, बुक में भी दिया गया है एनसीईआरटी में, वहाँ से पढ़ लीजिए आप. ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स है और हमें नेमिंग करनी है इसकी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा मेटल जो है, जो आयन कैटायन है, वो पहले आएगा. तो लिखेंगे पोटेशियम. हर तरह की नेमिंग मैं आपको बता दूंगा, और थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है. वैसे जब IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई कैटायन प्रेजेंट है बाहर तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर. ठीक है, तो पोटेशियम लिख लिया. अब हमारे पास में ये साइनो है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है. और तो अब हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करना पड़ेगा. तो ये तो साइनो C से आएगा, और ये जो नाइट्रोसिल है N से आ रहा है, तो पहले साइनो आएगा. ठीक है, तो साइनो कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं, तो पेंटा हो जाएगा. ठीक है, ये दिस इज यू विल राइट एट पेंटासाइनो. ठीक है ना. अब इसके बाद में अब ये आ गया नाइट्रोसिल, इन्हों को कहते हैं नाइट्रोसिल. ठीक है, तो नाइट्रोसिल हो गया. और उसके बाद में अब सेम वही, यहाँ पर भी वही चीज़ है. अब यहाँ से अगर जो पोटेशियम है, अगर वो आयनाइज होगा तो ये K+ के फॉर्म में जाएगा, और इस पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी अपना एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. दिस इज ऑल्सो एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम इसे कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, इसे कोबाल्टेट बोलेंगे. ठीक है, ये रूल है एक. तो और यहाँ पे जगह बिल्कुल आपको छोड़नी नहीं है, जगह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको. जब तो मिला के लिखेंगे कोबाल्टेट होने के बाद में, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेंगे. और ऑक्सीडेशन नंबर जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 मिल जाएगा. सॉल्व कर लीजिएगा इसको. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 हैं, तो 5 × 5, ये माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5, और ये 3 प्लस का 3 है, तो ये बचेगा आपका माइनस का 2, और वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा. और NO तो न्यूट्रल होता है. ठीक है, लेकिन न्यूट्रल है यहाँ पर ये वाला. तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग करते हैं स्टूडेंट्स. और एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूँ क्या करना है. जब अगर कोई एनायन बाहर हो तब हम क्या करेंगे. फिर से हमारे पास में कोबाल्ट है, और अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NH3, और NH3 अपने पास में 6 है, और सपोज़ बाहर लिखा हुआ है Cl3. ठीक है, इस वाले केस में क्या करना है आपको,
तो सबसे पहले लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, ठीक है। और उसके बाद में सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है, जगह नहीं छोड़नी बिल्कुल भी आपको। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और लास्ट में Cl3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लगा हुआ है लेकिन हम ट्राई नहीं लगाएंगे इसमें, यू विल राइट इट एज क्लोराइड, ठीक है। और जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो अमोनिया तो होता है न्यूट्रल, ये होगा -3, तो वहाँ आ जाएगा प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर नंबर में 3। तो इस तरीके से आपको IUPAC नेमिंग करनी है इसकी, ठीक है। और भी नेमिंग आप करके देखिए, इजी है टॉपिक वाला, आराम से कर सकते हैं। देन स्टूडेंट वी शुड ऑल्सो नो दैट हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ IUPAC नेमिंग इज गिवन। तो स्टूडेंट्स अब देखो मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखा हुआ है और अब मुझे इसका फार्मूला बनाना है। तो कैसे फार्मूला लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो सबसे पहले तो लिगेंड यहाँ पे एक तो नाइट्रो लिगेंड है और पेंटा अमाइन, अमाइन भी एक लिगेंड है और सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है। तो पहले एक रफ आइडिया हम लगाते हैं फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो ये तो रहा सेंट्रल एटम और नाइट्रो, एक नाइट्रो लिगेंड है और अमाइन है, ठीक है। अमाइन कितने हैं, 5 हैं, पेंटा अमाइन है। तो ये N से स्टार्ट हो रहा है और अमाइन A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्योंकि A पहले आता है तो अमाइन को लिखेंगे पहले, और अमाइन कितने हैं, 5 हैं, तो पेंटा अमाइन मतलब 5 हो गया, ठीक है। नाइट्रो भी है, ठीक है। तो नाइट्रो को हमने लिख लिया NO2 करके, लिख लेते हैं नाइट्रो को NO2 करके, ठीक है। और इस तरीके से बंद कर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये ब्रैकेट में रहेगा। और बुक में लिखा हुआ है दे आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, आप बुक से पढ़िए आप। देन उसके बाद में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में नाइट्रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रेट, NO3 भी लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब ये पता नहीं है मुझे कि ये NO3 कितने हैं, NO3 यहाँ पे 2 आएगा या 3 आएगा, मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस पर चार्ज पता करना पड़ेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स, इस पर चार्ज कितना है। और एक काम करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करके हम चार्ज पता करेंगे, 3+ और 5 इंटू अमोनिया कितना न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा, और प्लस NO2 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। और इक्वल टू क्या, चार्ज, इक्वल टू चार्ज कहाँ पर, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1, ये 3, तो ये बचा आपका 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अब बचेगा 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो चार्ज जो है प्लस का 2 आ जाएगा, चार्ज, ठीक है। ये चार्ज आ गया है किसके ऊपर, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। और जितना चार्ज आएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का उतना ही नंबर यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। हाउ टू राइट द मीन्स फॉर्मूला एंड हाउ टू राइट IUPAC नेमिंग। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी, मैं लिख लेता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक और मैंने IUPAC नेम लिखा हुआ है। तो उसमें अब सेंट्रल एटम कौन है, पहले तो कोबाल्ट है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के पहले कोबाल्ट लिख लीजिए आप। उसके बाद में ये अमाइन है और ब्रोमो भी है और नाइट्रो भी है। तो हमारे पास में 3 लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले अमाइन आ रहा है तो 3 हैं, तो लिख देंगे NH3 हो जाएगा होल थ्राइस, ये हो जाएगा होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद ब्रोमो आ रहा है तो लिख देंगे Br। उसके बाद में नाइट्रो भी आ रहा है तो लिख देंगे NO2, ठीक है, और क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसको, और कोई ख़ास बात नहीं, बस ये फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि आगे का ना तो कोई मेटल लिखा हुआ है इसमें और ना इसके बाद में कुछ लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। तो IUPAC नेमिंग, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग और सीखना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। IUPAC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, डू मोर प्रैक्टिस। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका। NCERT में पहले सारे रूल्स दिए हैं, वो सारे रूल्स पढ़ लीजिए और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स अपने आप लगाइए। कोई दिक्कत लगती है कमेंट करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका, और आंसर्स भी बता दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।